Hello friends, welcome to another session of Mains 450 Plus. Today the date is 1st August and we will be having a session on food processing sector. Now from this sector, what question and means you can expect? You can be asked why it is called as sunrise industry, right? You can be asked its significance and why there is increasing demand of processed foods as well as ready to eat. ऑलराइट एंड इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए एंड फाइनली द चैलेंजेस एंड फर्दर स्टेप्स जिसकी हमें जरूरत होगी राइट तो इन सभी डायमेंशंस को एक एक करके देखते हैं एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज दैट डोंट जस्ट वॉच इट एज अ lecture rather than have your involvement. Just think about what you mean by food processing here. Okay, and why we are talking about this sector. सो अगर हम थोड़ा सा इंडिया को एक कॉमन मैन की नजर से देखें तो हमें इंडिया में क्या दिखाई देता फर्स्ट थिंग इज दैट यस वी हैव ए एग्रीकल्चर ट्रेडिशन राइट सो मच ऑफ लैंड अंडर एग्रीकल्चर lot of people dependent upon agriculture and most of our workforce around 45-46% is engaged in agriculture right and not just agriculture tradition but one thing that no other country possesses but India does is diverse climate. Right, India can be divided into so many climatic regions. Every you can say that within our India we have so many microclimates. अलग अलग फसल ग्रो की जा सकती है अलग अलग क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो किए जा सकते हैं एंड थर्ड फैक्टर दैट सपोर्टर्स इज लार्ज एग्रीकल्चर वर्कफोर्स like in America what we see everything is depend on mechanization okay even they are not utilizing their land up to their full potential इसलिए इंडिया की जो एग्रीकल्चर उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर right we in India practice the intensive agriculture that means from every single piece of land we try to get maximum output possible right whereas in European countries what we see is the extensive not intensive but extensive एरिया बहुत है बट उतना ज्यादा इंटेंसिवली वो नहीं करते हैं कई बार फैलो भी छोड़ देते हैं ठीक है वो अदर फैक्टर्स हैं ये ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी वगैरह कई बार प्राइसेस ज्यादा ना गिर जाए प्रोडक्शन बढ़ने से इसलिए गवर्नमेंट ही उन्हें सब्सिडी दे देती है दैट टेक दिस मनी एंड लेट योर लैंड रिमेन फैलो फॉर दिस सीजन ओके सो दैट ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइसेस ना गिर जाए एनीवे सो दीज थ्री फैक्टर्स सपोर्ट कि इंडिया का एग्रीकल्चर अच्छा खासा है एंड यही डिसाइड करता है कि वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री we have the agriculture tradition okay we have the diverse climate and we have a large agriculture workforce now what this potential food processing industry will ultimately do good to our economy. One is first, it will ensure the food security of a huge population, which is expected to reach its peak of 1.70 billion. Right? At least ये माना जाता है कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन पीक कर जाएगी. Second is it will bring the economic development because हमारा एग्रीकल्चर जो है वो क्या है हाईली उतना ज्यादा वैल्यू के टर्म्स में उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है राइट हम लोग एक रॉ मटेरियल्स की तरह बेचते हैं लेकिन उनको उतना ज्यादा प्रोसेसिंग करके नेस्ले जैसे ब्रांड बनाकर हम लोग नहीं कर पाए राइट तो वैल्यू एडिशन करना प्रोसेसिंग करना वो सारे फैक्टर्स अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बेनिफिट होगा कि ये हमारे फार्मर्स की इनकम को इम्प्रूव करेगा राइट और हम लोगों ने टारगेट रखा ही है हमें फार्मर्स की इनकम डबल करनी है हालांकि हमें टारगेट की जो डेडलाइन थी उसको मिस कर गए बट फिर भी हमारा फोकस इस पर बना हुआ है नेक्स्ट इज इट विल रिड्यूस वेस्टेज. Now, these facts are something that you should always remember that 30% of our production, ठीक है, चाहे crops का हो, fruits, vegetables, milk or whatever, okay, it goes to wastage. Wastage क्यों होता है? Because हमारे पास proper storage facilities नहीं है. We don't have cold storage chains. We don't have warehouses sufficient. Okay, we don't have the processing industries. We don't have that infrastructure. इस वजह से हमारा 30% जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट चला जाता है एंड अल्टीमेटली इट विल बिकमिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज especially in rural and semi-rural एरियाज राइट सभी फैक्टर्स पे हम एक एक करके बात करेंगे सो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है इट कैन अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन विच विल मेक एग्रीकल्चर हाईली प्रोडक्टिव हाईली प्रॉफिटेबल more sustainable and more resilient
राइट। सो ये सारे प्रॉफिट होंगे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को और ज्यादा डेवलप करते हैं। दिस इज हाउ यू फॉर्म द इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। दिस इज हाउ यू फॉर्म द इंट्रोडक्शन, रॉट लर्निंग नहीं करना, वो गलती नहीं करनी है रॉट लर्निंग वाली। ओके, सो नाउ हाउ वी कैन से दैट, हाउ वी कैन डिफाइन इट एक्चुअली, व्हाट इज दिस एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर। सी, एग्रीकल्चर से हमें मिल गया एक तरीके से रॉ मटेरियल, चाहे वो फ्रूट्स के फॉर्म में हो, वेजिटेबल्स के फॉर्म में हो, मिल्क के फॉर्म में हो, या क्रॉप के फॉर्म में हो। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको मिला सोयाबीन, राइट। आपने प्रोसेसिंग की, आपने सोया ऑयल बना लिया, राइट। आपने सोया चंक्स बना लिए, आपने सोया मिल्क बना लिया, आपने पाउडर बना लिया। आजकल जिम वगैरह में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है हेल्थ के लिए, राइट। तो इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग जब हम लोग करते हैं, इनकी ब्रांडिंग, इनकी मार्केटिंग, इनकी प्रोसेसिंग, ये सब चीजें जब होती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये रॉ मटेरियल आपको जो प्राइस देकर जाता फार्मर को, उससे कहीं ज्यादा प्राइस ये फिनिश प्रोडक्ट्स देकर जाएंगे। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रांसफॉर्मिंग our agriculture raw material into consumable item, and that is that what agriculture, this food processing sector does. Now इससे दो benefit होंगे। First is it will add the value to the product, right, to the raw material, and second is कि इनकी shelf life भी enhance हो जाती है। जैसे टोमेटो कुछ दिन में खराब हो जाता है, बट अल्टीमेटली जो उससे सॉस बनता है, केचप बनता है, वो लंबी शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। Same is the case with other dairy products, right? So ultimately it will add the value and it will increase their shelf life. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर प्राइमरी की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्राइमरी हो जाएंगे, ठीक है। जब इनको हम और ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो सेकेंडरी में वी कैन मेक देम जैम, वी कैन मेक देम इनटू सॉस, वी कैन टर्न देम इनटू बटर एंड सो ऑन, राइट। एनीवे, अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पर। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन भर था, बट अल्टीमेटली हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। सो now think about what are the factors or what are the reasons behind this massive growth that we can see in food processing sector, especially पिछले कुछ टाइम से इसमें काफी तेजी से ग्रोथ देखी गई है। तो एक एक करके सभी फैक्टर्स समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। जैसे राइजिंग अर्बनाइजेशन, आज अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है दैट बोथ फैमिली मेंबर, ठीक है, हस्बैंड और बीट वाइफ, बोथ आर वर्किंग, right? So is rising urbanization, and now since both are working, so obviously their disposable income has risen, ठीक है। अब डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ रही है, आपकी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो अल्टीमेटली देर इज डिमांड फॉर मोर प्रोसेस्ड एंड कन्वीनियंट फूड। जैसे कि आजकल तो आपकी वो ग्रेवी भी आ गई है, सिर्फ आप पनीर लेके आइए, ग्रेवी ऑलरेडी रेडीमेड आपको मिल जाएगी, एंड दे आर लाइक यू कैन से इजी टू कुक, इजी टू कुक फूड की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। सिमिलरली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स चलाए, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी चलाया गया है यहाँ पर। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लेकर आई, ठीक है। 100% एफडीआई भी अलाउ कर दी गई बाय ऑटोमेटिक रूट्स। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च की गई। इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं, इन सब स्कीम्स के बारे में एक एक करके बात होगी। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव और पॉलिसीज ने एक बूस्ट दिया है इस सेक्टर को, इसीलिए इसको एक सनराइज सेक्टर भी कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। now आप अपने आसपास कुछ कंट्रीज देखिए, जैसे वेस्ट एशिया, ठीक है, अफ्रीका, चलिए अफ्रीका की परचेसिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है, बट वेस्ट एशिया की काफी ज्यादा है, और उनकी जमीन में पानी कम है, ऑयल ज्यादा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वेस्ट एशिया सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट होता है इंडिया के लिए फॉर इट्स फूड एक्सपोर्ट। Similarly, there is one chili in Andhra Pradesh. I don't remember exactly the name. That chili is consumed only in Southeast Asian countries. Right? वो सिर्फ वहीं पे कंज्यूम की जाती है, इंडिया में भी इवन लोग कंज्यूम नहीं करते। इट इज दैट स्पाइसी, राइट। तो हमारा इसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है, और क्योंकि हमने एफडीआई अलाउ किया है, सो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे और ज्यादा एफडीआई आएगी, एंड एफडीआई जब अपने साथ आती है तो सिर्फ फंड लेकर नहीं आती है, इट ऑल्सो ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज इन प्रोसेसिंग, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन लॉजिस्टिक्स, राइट। और अल्टीमेटली ये सब हेल्प करेगा हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में, राइट। और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा,
और बेटर प्रोसीजर्स बनेंगे और हम अपने एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें हर चीज में चाहिए। ये हमें स्टोरेज में भी चाहिए ताकि हमारा जो 30% वेस्टेज जा रहा है उसको रोका जा सके। ये हमें प्रोसेसिंग में भी चाहिए ताकि हम बेस्ट मेथड्स के थ्रू प्रोसेसिंग करें एंड बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी बना सकें। ठीक है, उनकी शेल्फ लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। अब जैसे आप इसराइल का एग्जांपल दे सकते हो, इट इज बेस्ट इन दीज थिंग्स, राइट। और इंडिया और इसराइल ने कॉपरेशन भी किया हुआ है दैट वी विल वर्क। एक एमओयू भी साइन हुआ था दैट वी विल वर्क टुगेदर इन मेकिंग द एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। Changing lifestyle and consumption pattern, self-explanatory है, like there is more demand of ready-to-eat food, or you can say that easy to cook food, okay। और ये सिर्फ फैमिलीज के टर्म में नहीं, ये स्टूडेंट्स के टर्म में भी है। ठीक है, जितनी ज्यादा बैचलर लाइफ है आजकल, मैरिज डिले हो रही है, बैचलर लाइफ लोग 10-10 साल पहले अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। सो द थिंग इज कि इस तरह की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, एंड जहां से कोविड आने के बाद से पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थियर लाइफस्टाइल, राइट। तो सोया बेस्ड मिल्क की डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, न्यूट्रिशन पे लोग अब ज्यादा फोकस करते हैं। ये सब चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन पैटर्न का ही असर है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर अबंडेंस। Now see, be it fruits, vegetables, milk or whatever, ठीक है, we are number one producer of these, right। आप राइस, व्हीट, सोयाबीन इन सब की बात कर लीजिए, we are second largest producer in this। तो हमारे एग्रीकल्चर अबंडेंस में हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट इतना हो जाता है कि कई बार इसके प्राइसेस गिर जाते हैं, right? अगर हम इस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के थ्रू इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली सीजन के हिसाब से प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहेंगे। कभी एक टाइम आएगा जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एक टाइम आएगा जब प्रोडक्शन होगा और प्राइसेस हद से ज्यादा गिर जाएंगे, राइट। तो ये जो अबंडेंस एग्रीकल्चर हो रहा है, हमारा अबंडेंस आउटपुट जो आ रहा है उसको प्रोसेसिंग करके हमें इंक्रीज शेल्फ लाइफ के साथ इसकी मार्केटिंग प्रॉपर करने की जरूरत है, राइट। बाकी सारे बेनिफिट हम शुरू में डिस्कस किए, फार्मर्स इनकम एंड ऑल दोस थिंग्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है विद द ऑटोमेटिक रूट, okay। It will bring not only the funds but it will also bring the technology, it will also bring the best managerial practices, okay। It will make everything more efficient, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब आता है एफडीआई लेके तो उसका एक सिंपल गोल होता है प्रॉफिट जनरेट करना है। और प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा, और ज्यादा जो वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस करके। वेस्टेज रिड्यूस कैसे होता है, जब आप और ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसिंग करते हो, एफिशिएंट मेथड्स फॉलो करते हो, राइट। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, सी दिस इज वन प्रॉब्लम इंडिया की। अभी हम चैलेंजेस में भी देखेंगे कि काफी हद तक जो छोटी मोटी प्रोसेसिंग टाइप है, ठीक है, जैसे लिज्जत पापड़ आपने सुना, चलिए वो तो ब्रांड बन गया, बट ऐसे कई जगहों पर है। लिज्जत पापड़ हो गया, जैगरी हो गया गुड़, राइट, नमकीन हो गए, स्नैक्स, ये बनते तो हैं, ठीक है, आप बेसन लोगे उसे स्नैक्स बनाओगे, ठीक। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ दी जो ऑलमोस्ट 75% जो ये सेक्टर है दैट इज अनऑर्गेनाइज, छोटे लेवल का है, ठीक है। फिर छोटे लेवल में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके आपके पास एफिशिएंसी नहीं है, आपके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, ओके। फिर आपकी उसमें क्वालिटी नहीं है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है। फिर आपके पास मार्केटिंग लिंकेजेस नहीं है। तो हमारा जो 75% सेक्टर है बहुत ही अनऑर्गेनाइज है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि काफी सारी ग्रोथ दिखी गई है इन दी ऑर्गेनाइज रिटेल चेन, चाहे वो आप रिलायंस को देख लीजिए, ठीक है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी जो फॉरेन से भी आई हैं आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। काफी सारे सुपर मार्केट्स ओपन हो गए, सुपर मार्केट और यू कैन से हाइपर मार्केट, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर एंड सो ऑन, ठीक है। सो और इन सब से क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली फार्मर को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक रिटेल चेन मिल जाती है कि हम अपना यहाँ पर सेल कर सकते हैं। या फिर सीधे सीधे कई बार जो रिटेलर्स होते हैं बड़े बड़े, वो फार्मर्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपने गुजरात का केस देखा था पेप्सिको ने फॉर लेस पोटैटो, राइट। नेक्स्ट इज अगेन अवेयरनेस, हेल्थ कॉन्शियस। आजकल जो काफी लोग कॉन्शियस हो गए हैं थोड़ा अपना, ठीक है, हम लोग फोर्टिफिकेशन को भी काफी एम्फेसाइज कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चों की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे फोकस किया जा सके और अल्टीमेटली फाइट की जा सके अगेंस्ट दी मेल न्यूट्रिशन, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने की जरूरत है, वेयर हाउसेज बनाने की जरूरत है। जैसे अडानी ग्रुप ने 400 एकर्स हरियाणा में
वेयर हाउसेज बनाए गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली कि पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, जैसे हमने अलग से इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बनाए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ये सब क्या करेगा, ये लॉजिस्टिक्स को और ज्यादा स्मूथ करेगा, एफिशिएंट करेगा, जो टाइम होता है ट्रैवल का उसको रिड्यूस करेगा, और अल्टीमेटली वेस्टेज को और ज्यादा रिड्यूस करने में मदद मिलेगी, राइट। सो दीज आर द रीजंस कि क्यों ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है तेजी से। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, क्या है इसके। तो सिग्निफिकेंस, अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सोचिए, एटलीस्ट आप क्या 5 पॉइंट ऐसे लिख पा रहे हो कि सिग्निफिकेंस क्या होंगे इसके। एटलीस्ट इतना तो आपको लिखना चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस वाला है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके जरा एक बार खुद से सोचिए क्या आप सिग्निफिकेंस लिख पा रहे हो या नहीं। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज दैट इंक्रीज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो यहां पर इस सेक्टर की ग्रोथ रेट रही है करीब करीब 8.3%, जबकि हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर की सेक्टर की ग्रोथ क्या रही है, अराउंड 4%, ठीक है। और इस बार तो गिर के 1.3% के अराउंड आ गई है, ठीक। बट इस सेक्टर में काफी हैवी ग्रोथ रेट देखा गया है, अगेन ड्यू टू राइज ऑफ दिस कंज्यूमरिस्ट लाइफ स्टाइल, अर्बनाइज्ड लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज कि ऑब्वियसली अगर हम इस सेक्टर को और ज्यादा प्रमोट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इंडिया में, और अभी एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी आप इस तरह के पॉइंट्स लिखेंगे तो सिर्फ ये पॉइंट्स की हेडिंग या सब हेडिंग डालने भर से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट, कुछ सर्वे मेंशन करने होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज को, ओके। हालांकि 1920 का सर्वे था, बट अभी हमारे पास यही डेटा प्रेजेंट है। तो दिस शोज कि अगर हम रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग की बात करें, राइट, रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें करीब करीब 20 लाख से ज्यादा वर्कर एंगेज हैं, और अगर हम इसके साथ अनरजिस्टर्ड को भी ऐड कर लें तो उसमें एडिशनली 50 लाख से ज्यादा वर्कर्स इसमें एंगेज है, राइट। तो ये काफी मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये, क्योंकि आपको ये जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करनी है, आपको सारा कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं रूरल एरियाज के करीब बनाना होगा। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है उसको रोकने में भी इससे हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और वही हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को। बिकॉज आपको स्टोरेज फैसिलिटीज अगर बनानी है तो आपको वही बनानी पड़ेंगी, एटलीस्ट 8-10 विलेज के बीच में कहीं नजदीक में, राइट। आपको कोल्ड चेन्स बनाने हैं, कोल्ड स्टोरेज तो वो भी वहीं बनाने पड़ेंगे, वेयर हाउसेज बनाने हैं तो वो भी वहीं करीब में बनाने पड़ेंगे। ओके, अल्टीमेटली आपको कनेक्टिविटी करनी है अपने अर्बन सेंटर के लिए, तो फिर आपको क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन को भी और ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट बनाना होगा, राइट। सो ये प्रमोट करेगा एटलीस्ट एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बात करें, यहाँ पे काफी सारे लोकल टेस्ट होते हैं, जैसे कई बिहारी गुजरात में काम कर रहे हैं, वही तमिलनाडु में भी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, राइट। कई अरुणाचल प्रदेश तक में भी काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सबको अपने यहाँ के चीज का टेस्ट होता है। सो वो चीज अगर प्रोसेसिंग फॉर्म में अवेलेबल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि और ज्यादा हम लोग जो अपना कहते हैं कि एक जगह का कल्चर दूसरे कल्चर, और फूड हमारे कल्चर का ही पार्ट है अल्टीमेटली। लार्ज एफडीआई फ्लो एंड मार्केट साइज। सो अगर हम इस सेक्टर्स में देखें तो अभी करीब सिंस 2019 इसमें 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा तक का इन्वेस्टमेंट आया है, और जो कि आप कह सकते हो कि इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट सेक्टर है। दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सेक्टर in terms of FDI. Okay, so obviously this sector is rising. Next is हम लोग को इसमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में मौका मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि पिकल जैसे सेक्टर्स हैं, ठीक है, आम से मैंगो से बन जाते हैं पिकल्स, राइट। देर इज पापड़, देर आर स्नैक्स, राइट, देर इज जैगरी। मोस्ट ऑफ दी ये क्या काम है कि ये रूरल विमेन को वाकई एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देंगे, राइट, राइट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट, तो यहाँ पे लिज्जत पापड़ का एग्जांपल तो वर्ल्ड फेमस है, वी ऑल नो। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अगर आपको ऐसा मोटा ताजा बनना है तो वैसी बात है कि यहाँ पे जो फूड फोर्टिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं उससे मदद मिलेगी, राइट। फूड फोर्टिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एसेंशियल वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, ये सब हम लोग एडिशनली इसको ऐड करते हैं, जैसे जिंक वगैरह हमने ऐड कर लिया, आयरन थोड़ा एडिशनल अमाउंट पे बढ़ा दिया, और उससे अल्टीमेटली हम लोग जो अपने मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बाकी आप ये सिंपल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं इसमें। एग्रीकल्चर को एक सपोर्ट मिल जाएगा बिकॉज फार्मर को एक बेटर इनकम होगी, ठीक है। लॉसेस थोड़े से रिड्यूस होंगे जो एग्रीकल्चर के हैं, अराउंड 30%। एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद मिलेगी वहीं विलेज एरिया या नियर बाय विलेज,
ताकि फार्मर का वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद वेयर हाउसेज आसपास ही अवेलेबल हो, उसको अपनी तरफ से फ्यूल या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करके मंडी तक चीजें ना लानी पड़े अगर वो दूर है तो। ठीक है, वही वेयर हाउस होगा, वहीं की वहीं उसका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंज्यूमर कन्वीनियंस। ऑब्वियसली जो मैंने आपको टर्म्स दिए, रेडी टू ईट, इजी टू कुक, ये इस तरह के टर्म्स अपने आंसर में जरूर लिखना। ठीक है, ये यही आपके आंसर को अल्टीमेटली अच्छा बनाएंगे। सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट में ऑब्वियसली पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगे, बेटर रोड्स बनाए जाएंगे, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वो सब लिख दीजिएगा, उसमें कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउसेस हो, या फिर क्वालिटी चेक हो, पैकेजिंग हो। ओके, इसके अलावा इनोवेशन टेक्नोलॉजी। सो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी सेक्टर को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन करने ही होते हैं। और वो सब चीजें कैसे आती है, वो आती है फंडिंग के थ्रू। जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ चुकी हैं, अडानी ग्रुप आ चुका है, रिलायंस ग्रुप है, वॉलमार्ट जैसी कंपनीज हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दे विल ब्रिंग बेटर टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोसेसिंग, ओके, फॉर स्टैंडर्डाइजिंग, फॉर पैकेजिंग एंड अदर थिंग्स। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिकॉज एक तो इंडिया में क्या है, वैरायटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा कि जो वेस्ट एशिया है, ये पूरी तरीके से इंडिया पर ही डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, एंड सो इज दी आसियान। ठीक, आसियान में भी हमारे यहाँ की जो स्पाइसेस, आसियान के टर्म्स में वो लोग हमसे ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं, वो हमसे लेते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसेस, ये उनका फेवरेट है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कोई रॉ मटेरियल ही सेल कर रहे हो डायरेक्ट, तो इट डजंट गिव यू दैट प्राइस। ओके, बट अल्टीमेटली जब आप प्रोसेसिंग के बाद उसको प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग वगैरह करके बेचते हो, तो ऑब्वियसली यू अर्न अ हाई वैल्यू। इंडिया की फूड सिक्योरिटी का इंश्योर करेगा, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करेगा, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, सो मैंने आपको 10 से 12 पॉइंट्स दिए, आप कोई भी 5 पॉइंट याद रखिए और अपना आंसर अच्छे से बिल्ड कीजिए। ओके, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब इसमें फोकस क्या किया गया था, इसमें पूरा फोकस जो था वो था टू क्रिएट द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपसे टॉपिक समझने पे और अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, इसके रेडीमेड पूरे फुल फ्लैजेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा फोकस आपको समझाने पे है, बाकी आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे बात की गई थी, और अब इस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही क्या हम प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, एनहांसिंग द वैल्यू एडिशन, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू द फुल फ्लैजेड रेडीमेड नोट्स। ठीक है, और नो वन मोर थिंग कि इस स्कीम के अंडर में काफी सारी सब स्कीम्स भी है, जैसे मेगा फूड पार्क्स, ये सब इसी स्कीम के अंडर ही पार्ट है। ठीक है, ये सब स्कीम्स इसके अंडर में। सिमिलरली इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाई जाएगी। देन इसके अलावा कई बार हमारे प्रोडक्ट्स जब एक्सपोर्ट के लिए बाहर जाते हैं, तो ऑन इन द नेम ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, होता क्या है कि आपकी मैंगोज में केमिकल ज्यादा है, या आपने जो क्रॉप ग्रो किया है इसमें हद से ज्यादा केमिकल्स है, सोयाबीन में स्पेशली, तो हमारा प्रोडक्ट ना कई बार रिजेक्ट हो जाता है। ओके, तो इस स्कीम में इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इस स्कीम के अंडर में ये सारी बातें की गई थी। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है, एंड वन मोर थिंग कि दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, सेक्टर स्कीम का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 100% जो फंडिंग होगी वो किसकी तरफ से आएगी, सेंटर की तरफ से। दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो आप कह सकते हो कि इसमें पूरी जो सप्लाई चेन है आपकी, फ्रॉम फार्म टू द रिटेल आउटलेट, वहां तक का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पूरे को तैयार किया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे पास फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो 75% जो इस सेक्टर में एंगेज है, वो सब हैं थोड़े से इनफॉर्मल, स्मॉल, अनऑर्गेनाइज। ठीक है, हमें उन सबको फॉर्मलाइज करना है ताकि गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट भी उनको मिल सके। इनफॉर्मल से हमें उनको कन्वर्ट करना है इनटू फॉर्मल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी इन जून 2020।
आउटले रखा गया था इसमें ₹10,000 करोड़। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और ना मैं एम्फेसाइज करता हूँ कभी कि आप अमाउंट याद रखिए, लेकिन क्या है कि जैसे 10,000 करोड़ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए ले आए, तो इस तरह की कई बार बात याद रखना जरूरी भी हो जाता है, ठीक है, आपके आंसर को थोड़ा और ज्यादा बेटर दिखाता है। यहाँ पे हम लोग एनकरेज कर रहे थे वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, और इस स्कीम का टाइम ड्यूरेशन रखा गया था फ्रॉम 2020 टू 25, सो इट इज स्टिल ऑन गोइंग। अल्टीमेटली हमें क्या करना था, फर्स्ट थिंग इज कि ये एक लॉकी स्कीम है जिसने माइक्रो एंटरप्राइजेस पे ध्यान दिया था। माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, रिमेंबर दिस, माइक्रो एंटरप्राइजेस। क्योंकि विलेजेस या नियर बाय विलेजेस जनरली क्या होता है कि पिकल बनाया जा रहा है एकदम लोकल छोटे लेवल पे, राइट, पापड़ बनाया जा रहा है छोटे लेवल पे, जैगरी एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना था कि इन माइक्रो एंटरप्राइजेस को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना था, राइट, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से निकाल कर ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लेकर आए, ठीक है, उनका फॉर्मलाइजेशन करें, मतलब प्रॉपर सारे रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब चीजें होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम होती है उसका जो भी बेनिफिट हो वो इन तक पहुंचे, राइट। क्रेडिट लिंक सब्सिडी की बात की गई इसमें, और इसी के अंडर में वो अप्रोच लिया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। फूड प्रोसेसिंग फंड भी बनाया गया था, ये नाबार्ड के थ्रू बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव वही था कि इन एंटरप्राइजेस को अफोर्डेबल क्रेडिट उपलब्ध कराना है, अफोर्डेबल क्रेडिट टू बोथ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी जो गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी, ताकि वो लोग सेटअप करें डेजिग्नेटेड फूड पार्क। ओके, ऑब्वियसली स्कीम बहुत पुरानी है, 2014-15 की है, बट सरकार क्या है कि स्कीम ले तो आती है लेकिन उनमें सनसेट क्लॉज नहीं डालती कि एक टाइम के बाद ये स्कीम एक्सपायर हो जाएगी, वो चलती रहती है। नेक्स्ट इज वे, उसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड बनाया है, तो वेयर हाउसेस के लिए भी एक कॉर्पस बनाया गया था अराउंड 5,000 करोड़ का, ठीक है, और यहाँ पे पूरा सपोर्ट दिया जा रहा था स्टेट ओन्ड एजेंसीज को, जैसे जैसे हमारी एफसीआई वगैरह है, ठीक है, उनको क्या है कि आप अपनी जो वेयर हाउस की जो कैपेसिटी है बढ़ाइए, ठीक है, और ज्यादा वेयर हाउस बनाइए, क्योंकि कई बार क्या होता था कि हमारा वीट सोयाबीन इतना प्रोड्यूस हो जाता था कि वो बाहर रखा रहता था गोडाउन के, तो फिर वो बारिश आती थी एंड वो सब खराब हो जाता था, न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा, राइट। और सिर्फ वेयर हाउस बनाना ही नहीं है, इनको वेयर हाउस को साइंटिफिक वे में बनाना है, ठीक है, साइंटिफिक में। तो इसीलिए आजकल आप वेयर हाउस नहीं देखोगे वो स्क्वायर वाले, आजकल आप लोग देखते हो सिलोस, ठीक है, वो सिलेंडर जैसे होते हैं ऐसे बड़े बड़े, ये स्लो, ठीक है, साइंटिफिक, ताकि इनके अंदर अब क्या है, ये जो वेयर हाउस बनाए जाते हैं ये जनरली ग्राउंड फ्लोर पे बना लिए जाते हैं विलेजेस में छोटे छोटे। अब कई बार उनमें पेस्ट जा रहे हैं, कई बार कीड़े मकोड़े, या फिर थोड़ा सा बारिश ज्यादा हो गई पानी अंदर घुस गया उस तरीके से, ठीक है, तो इस तरह के वेयर हाउसेस को कम एनकरेज किया जाए और इस तरह के साइंटिफिक वेयर हाउसेस को ज्यादा एनकरेज किया जाए। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आए थे, अगेन वही सारी बातें थी कि हम लोग क्वालिटी नॉर्म्स अच्छे मेट करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब इन क्वालिटी नॉर्म्स वगैरह को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पे क्वालिटी चेक वगैरह हो सके, ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड ऑल दोस थिंग, एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन एंड ऑल, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ फॉरेन में जाकर रिजेक्ट ना हो, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी सब्सिडी लेकर आए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर आए हम लोग। अगेन गोल सिंपल सा था कि ये ऑब्वियसली अब प्रोडक्शन लिंक है तो आपको प्रोडक्शन पे ही मिलेगा कि जितना कि आप प्रोडक्शन कर रहे होगे, ओके। एनकरेज करने के लिए था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, तो जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से ही सरकार आपको इंसेंटिवाइज करती रहती थी, उसी तरीके से आपको इंसेंटिव्स मिल जाते थे। काफी ज्यादा फोकस हमने किया सी फूड पे, ठीक है, क्योंकि ये काफी बाहर डिमांड में रहता है, जैसे जापान है वो पूरी तरह सी फूड पे डिपेंड है, ठीक है, तो फिश एंड सी फूड इस तरह के सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया गया। मेगा फूड पार्क स्कीम भी लेकर आए हम लोग यहाँ पर। मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में खास बात ये थी कि इट वाज द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, क्योंकि हमारे अधिकतर फार्मर्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो आप एक एक को नहीं कर सकते, आप पूरे 4-5 विलेजेस को एक साथ लेकर एक पूरा क्लस्टर बना देते थे, ये एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, और उसी में आप क्या पूरी कोशिश करते थे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए यहाँ पर, ओके, उनको डिफाइन कर दिया जाए अंडर वेल या तो एग्रीकल्चर जोन या फिर हॉर्टिकल्चर जोन,
राइट, और इन्हीं की नियर अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए। ओके, अब अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब चैलेंजेस आप खुद से भी लिख सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, चैलेंजेस में कोई इशू नहीं आएगा। फर्स्ट इज कि इतना कुछ होने के बाद भी जो जो वैल्यू एडिशन है, ठीक है, वो बहुत कम है अभी भी। ठीक है, हाई डिमांड है इंडिया में इनकी, वर्ल्ड में भी हाई डिमांड है प्रोसेस फूड की, क्योंकि उसके बाद भी अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखेंगे तो ये जस्ट 1.8% ग्रॉस वैल्यू एडिशन है इसका। ठीक है, हमारी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर एग्रीकल्चर के शेयर में भी देखेंगे हम तो हार्डली कुछ 16% है। ठीक है, तो इसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन अभी काफी ज्यादा कम है। नेक्स्ट इज जो सप्लाई चेन है वो काफी इनएफिशिएंट है हमारी। सप्लाई चेन में अब वो सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये काफी इनएफिशिएंट है ट्रांसपोर्टेशन। स्लो है, मेजरली हमारा जो 70% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो होता है वो किससे हो रहा है, बाय रोड यानी कि ट्रक्स। ठीक है, स्लो है। ठीक है, फास्ट नहीं है, रेलवे से कम होता है, इससे ज्यादा होता है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं है, यानी कि ना हमारे पास उतने अच्छे कोल्ड स्टोरेजेस हैं, ना हमारे पास उतने अच्छे साइंटिफिक वेयर हाउसेस हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है फिर 30% का जो हमारा प्रोडक्शन है वो लॉस हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो हैंडलिंग वगैरह भी होती है, ठीक है, स्टोरेज एंड ऑल दिस। ठीक है, हैंडलिंग में भी क्या है हमारे यहाँ काफी इनएफिशिएंसीज है। अगर आप कहीं मंडी वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे काफी इनएफिशिएंसीज है। ओपन में पड़ा है तो फिर वो ओपन में ही पड़ा हुआ है। राइट, तो ये सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज है, इनको ओवरकम करना जरूरी है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर बेस। अगेन फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर बेस बिकॉज हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग है फार्मर्स की वो बहुत कम है। फॉरेनर्स की तरह नहीं है कि 500 एकड़ 1000 एकड़ इस तरह की जमीन है, क्योंकि यूएसए में क्या है, जस्ट 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। और हमारे यहाँ मोर मोर ओवर अगर हम देखें तो हमारी पूरी रूरल पॉपुलेशन जो 70% वो पूरी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। और 45% वर्कफोर्स तो डायरेक्टली उसी में लगी हुई है। ठीक है, कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग होने की वजह से, जैसे सेकंड, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग होने की वजह से उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्वालिटी वाइज आप देखेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी के लिए आपको क्या होता है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। और इनपुट कॉस्ट, सॉरी, आपको इनपुट ज्यादा अच्छी क्वालिटी के यूज करने होंगे, लेकिन वो कॉस्ट को पुशअप कर देते हैं और फिर छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो उतना अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बड़े फार्मर्स भी हैं हमारे इंडिया में भी, ओवरसीज 100 एकड़ 200 एकड़ वगैरह वाले भी। बट मेजरली हमारे जो फार्मर्स हैं इंडिया के अराउंड 80 to 90% दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। राइट, तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाया। ठीक है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज को ओवर करने के लिए क्या लेकर आए हम, पीएम संपदा योजना। ठीक है, उसका यही गोल था। उस तरीके से मेगा फूड पार्क वाली ये लेकर आए फ्रेगमेंटेड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ स्कीम याद करना इज नॉट द पर्पस, द थिंग इज कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि चैलेंजेस क्या हैं और किस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए सरकार ने क्या स्टेप लिया है। क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो उसके लिए भी सरकार ने ऊपर बात की है, हमने ऊपर बात की इसके लिए। ठीक है, ये सब आपको जो फूड प्रोसेसिंग फंड वगैरह बनाए गए हैं उसमें यही सब है कि आप ये क्वालिटी वगैरह पे जो अ, ध्यान देने की जरूरत है हम उसको बेटर कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन वाले में भी हमने यही कहा कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनकी उतनी क्वालिटी नहीं होती है, उतने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, वरना क्या होगा कि जो ओवरसीज एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें जाकर फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं एंड वापस आ जाते हैं। हमारे जो अल्फोंसो मैंगोस है वो कई बार रिजेक्ट हो गए, स्पेशली यूरोपियन यूनियन में कई बार हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज एक और चैलेंज ये रहेगा कि हमें एक कंप्लायंस करना होगा विथ ऑल दो स्ट्रिंजेंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सेफ्टी एंड क्वालिटी नॉर्म्स। सेफ्टी एंड क्वालिटी नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना होगा। ओके, इसके अलावा रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, ऑब्वियसली वो तो इंडिया में हर इस सेक्टर में ही है कि जो ग्रोथ है आपकी वो कई बार गवर्नमेंट की इतनी इस तरह की पॉलिसीज होती हैं जो आपको उसमें रुकावट क्रिएट करती हैं। टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, ऑब्वियसली वी डोंट हैव द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, वी डोंट हैव, हमारे पास नेस्ले जैसी कैडबरी जैसी इस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें और ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की जरूरत होगी। और इसी को ओवरकम करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि एफडीआई को 100% अलाउ कर दिया अंडर ऑटोमेटिक रूट्स, ताकि ताकि ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप्स वगैरह हैं इनको ओवरकम किया जा सके।
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम चला रही है। जैसे अभी हमने ऊपर देखी, सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे सरकार ने ये सारे फंड्स क्यों बनाए हुए हैं, वेयर हाउस कॉर्पस फंड, फूड प्रोसेसिंग फंड। इसमें क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग जो क्रेडिट की प्रॉब्लम है इन सेक्टर में उसी को ओवरकम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वगैरह के लिए आप ये दोनों फंड मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसको मैनेज कर रही है, बट अगेन स्टिल जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनके लिए फंडिंग अभी भी एक इशू है। ओके, हाई वेस्टेज है, 35% का वेस्टेज है, वो सब इसलिए है क्योंकि इनएफिशिएंसी है। तो अगेन इसी को रिड्यूस करने के लिए संपदा योजना लाई गई है ताकि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और बेटर बनाया जा सके। रेगुलेटरी चैलेंजेस है काफी सारे। अगर हम माइक्रो को, आज हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक, अगर हम आज कह रहे हैं कि हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, अराउंड 75% जो है वो अनऑर्गेनाइज है, तो फिर इसको हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग भले स्कीम ले आए, ठीक है, फॉर्मलाइजेशन के लिए, बट द थिंग इज कि इसमें इतने सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं कि इंसान सोचता है मैं अनऑर्गेनाइज वर्क करके ही ठीक हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज वे उसमें नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं, इस चीज से कंप्लाई कीजिए, उस चीज से कंप्लाई कीजिए एंड सो ऑन। कंज्यूमर में उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ कंज्यूमर की प्रॉब्लम नहीं है हमारे, अगर आप एफएससीआई की परफॉर्मेंस देखेंगे तो अगर आप इसको क्वालिटी वाइज देखें तो ये अप्रूव कर देता है, बट अगर आप इसके पीछे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे आप उसके रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे या उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्लेम तो कर रहे हैं कि इट इज 100% दिस 100% दैट, बट एक्चुअली है नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो कंज्यूमर की अवेयरनेस भी नहीं है, और कई बार काफी सारे मिसकंसेप्शन भी हैं कि ये अच्छा नहीं है, प्रोसेस फूड अच्छा नहीं है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट यहाँ पे पूरी तरीके से आप कंज्यूमर को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम जाता है एफएसएसआई पे। ठीक है, हर कोई पूरा शुगर कंटेंट भरा हुआ है बॉर्नविटा में, बट इट से आप बच्चे को ये दीजिए बहुत अच्छा ही हेल्थ बनेगी एंड सो ऑन। कंपटीशन, अब ऑब्वियसली जब आपका कंपटीशन हो वर्ल्ड की बेस्ट नेस्ले जैसों से या फिर यू कैन से कैडबरी टाइप की चीजों से, तो ये इजी नहीं होता है। ठीक है, एक तो हम लोग ऑलरेडी लेट स्टार्टर हैं, हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है इनकी तरह, उतनी अच्छी मैन पावर भी नहीं है हमारे पास, उतनी अच्छी जो स्किल कह सकते हो आप वो मैन पावर भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास, हमारे पास उस लेवल की फंडिंग अवेलेबल नहीं है, हमारे पास उस लेवल की ब्रांडिंग नहीं है। आपको क्या लगता है बाग बकरी चाय कोई परचेज करता होगा फॉरेन में? मुश्किल है। टाटा टी फिर भी फेमस है, बट बाग बकरी चाय अगेन द प्रॉब्लम इज ब्रांडिंग। ये तो बेस्ट उससे कॉम्पीट करने के लिए भी हमें काफी कुछ करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कंसर्न। अब अगर आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कोल्ड स्टोरेज क्या रिक्वायर करेगा, एनर्जी। एनर्जी के लिए फिर वही और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और ज्यादा पॉल्यूशन एंड सो ऑन। जब आप प्रोसेस फूड की बात कर रहे हो तो प्लास्टिक का और ज्यादा यूज बढ़ेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ेगा, पॉलीथीन वगैरह का कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो ऑल दीज आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो फर्दर स्टेप्स में हम क्या कर सकते हैं? अब अगर चैलेंजेस समझ में आ जाते हैं तो फर्दर स्टेप्स और क्या लेने ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट इज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करें हम। ठीक है, जैसे अपने लॉजिस्टिक्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने में, अपने लॉजिस्टिक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का, हम लोग यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम लोग यूज कर सकते हैं रोबोटिक्स का। ऑब्वियसली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी फार फेस्ट चीजें, ऑटोमेशन का, राइट, इन सबको लॉजिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं। बट अगेन वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमारे लोगों को क्या काम देंगे हम, अगर हर चीज हम मशीनों से करा लेंगे तो फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। देखिए क्रॉप्स के प्रोडक्शन में जो ग्रोथ है उससे कहीं ज्यादा हॉर्टिकल्चर और एनिमल में हमें ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। और इसमें अगर हम 5 चीजों पर फोकस करें, फर्स्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल, वी आर नंबर 1, बहुत प्रोडक्शन होता है, बट अल्टीमेटली जब एक टाइम पे प्रोडक्शन होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, पूरी प्राइस नीचे चली जाती है। ठीक है, फिर जब लीन सीजन आता है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू फोकस ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल। सेकंड इज वी शुड फोकस ऑन सी फूड क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, सी फूड इंक्लूडिंग फिश। नेक्स्ट वी शुड फोकस ऑन मीट। इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लास्टली पोल्ट्री एंड एग्स। इन 5 सेक्टर्स पर हम लोग खास फोकस कर रहे हैं। ठीक है, या इन्हीं पे करने की जरूरत है क्योंकि अल्टीमेटली ये ऐसी चीजें हैं जिसको कोई भी छोटा फार्मर भी कर सकता है इररिस्पेक्टिव कि उसके पास कितना लैंड एरिया है। ओके, नेक्स्ट इज स्किल्ड मैन पावर। अब स्किल्ड मैन पावर इंक्लूडिंग कि टेक्नोलॉजी हम लोग उतनी अच्छी बना पाए, राइट, उतने अच्छे क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स हों हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि कई बार क्या होता है कि टेस्टिंग करने के लिए मैन पावर ही नहीं है उतनी। किसान तो अपना प्रोड्यूस लेके आ गया लेकिन वहां ऑर्गेनाइजेशन में उतनी अच्छी टेस्टिंग की ना किट्स है ना ही मैन पावर है। नेक्स्ट इज हम अपनी प्रोसेसिंग मेथड्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाएं और ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाएं। ठीक है, उसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट हमारा ज्यादा प्रॉपर हो ताकि वो इधर उधर रिजेक्ट ना हो वर्ल्ड में जाके।
नेक्स्ट इज बेटर हेल्थ मार्कर्स। ठीक, तो ये आप पैकेट पे क्या लिखते हो उससे मैटर करता है। आजकल आपने यूट्यूब में देखा होगा, एक लड़का है वो रिव्यू करता रहता है बिस्किट्स और हर तरह की चीजों को, ठीक है, प्रोटीन शेक वगैरह को, कि ये क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, कि बेटर हेल्थ मार्किंग की जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब वो पूरा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाती है इसके लिए, क्योंकि एफएसएसएआई तो पूरी तरीके से टोटल फेल है। सब कुछ अप्रूव कर देता है बट वो सब चीजें बाद में फेल हो जाती हैं। पतंजलि के काफी सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए। इंडिया का एक भी हनी ऐसा नहीं था जो मैग्नेटिक टेस्ट को पास कर पाया हो, जर्मनी में जब वो टेस्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे यहाँ का ये रेगुलेटरी नॉर्म्स काफी खराब है। नेक्स्ट इज वी शुड टैप द पॉपुलैरिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नो सी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर आप बात करें तो जैसे हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं कि मिलेट्स, ठीक है, इसको ज्यादा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी तरीके से एक और होता है रागी एंड बाजरा, ठीक है। इनको हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स को और ज्यादा, जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि ये सब हेल्थ, ये हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी जो वीट की चपातीस होती है उनसे कहीं ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो हमें इनको टैप करने की जरूरत है। इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में आजकल हेल्दी डाइट के बारे में। जैसे राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ग्लूटासिन डेफिसिट डाइट लेना पसंद करते हैं, इसलिए वो रागी की रोटी प्रेफर करते हैं। ओके, तो इस तरह की चीज़ों को हमें और ज़्यादा इंकरेज करने की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो रादर देन कि जो हैबिट बनी हुई है इंडियंस की उसमें। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हमें अपनी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में जो जो चीज़ें ग्रो होती है उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल ड्रैगन फ्रूट वगैरह काफ़ी पॉपुलर है। राइट, तो यहाँ पे हमने काफी चीजें जान ली, क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम इसमें। ओके, हमने यहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस डिस्कस किए। देखिए, मैंने इन चैलेंजेस को ना ब्रेक डाउन करके डिस्कस किया आपसे। आपको हार्डली वहाँ पे 5 to 6 चैलेंजेस लिखने हैं, और ये तो मैं खुद आपको भी नोट्स दूंगा, ठीक है, आपको प्रॉपर नोट मिलेंगे इसके, वो तो आप वहां से रीड कर लोगे। मेरा फोकस था इनको ज्यादा से ज्यादा ब्रेक डाउन करके आपको इजी से इजी वे में समझाना। राइट, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की स्कीम्स देख ली। हमने कितनी स्कीम्स देखी? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, गिनती की 3 4 स्कीम्स याद रख लीजिए। उस तरीके से हमने 10 to 12 पॉइंट्स देखे अंडर द सिग्निफिकेंस, आप इसको याद रखिएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमने 8 to 10 देखे थे रीजंस कि क्यों ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। एंड ये सिर्फ पहला लेक्चर था। अभी इस सीरीज में हमने 5 टॉपिक्स डिसाइड किए हुए हैं, तो हम उनको एक एक करके 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ ऐप पे अपलोड होगा, दैट इज इजी एज बाय यूपीएससी। ऑलराइट, तो हमारी कोशिश है यहाँ पर कि हम 450+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर पाए फॉर 2025 मेंस। राइट, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.